السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے۔ شکریہ۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنی کہانی شروع کروں، سننے والوں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مہم جوئی کا شوق مجھے ورثے میں ملا۔ میرے والد برٹش گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار تھے، لیکن ان کی زندگی کا بھی بیشتر حصہ مہم جوئی میں گزرا، اور ان کی غیر معمولی موت بھی ایک دشوار گزار مہم میں واقع ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری عمر صرف 8 سال کی تھی کہ میری ماں نے دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی میری ماں کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بھائی بہن چونکہ اپنے اپنے گھر والے ہو چکے تھے، اس لیے میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 14 سال باپ کی رفاقت میں گزار دیے۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں، لیکن مجھے پڑھائی لکھائی کا متعلق شوق نہ تھا۔ چنانچہ FA کرنے کے بعد میں نے والد صاحب سے صاف کہہ دیا کہ اب اس سے آگے پڑھنا میرے بس کی بات نہیں۔ والد صاحب کچھ دنوں تک سمجھانے بجھانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ FA کر لینے کے بعد 1 سال تک میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا۔ سوائے کھانے پینے اور صحت کو بہتر بنانے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ والد صاحب نے جب دیکھا کہ میری عمر یوں ہی تمام ہوئی جا رہی ہے تو انہوں نے مجھ سے ملازمت کرنے کو کہا، اور میرے بہت اصرار پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مجھے محکمہ جنگلات میں ملازم کروا دیا۔ میرے والد کو آدم خور شیر اور چیتے مارنے کا شوق جنون کی حد تک تھا، اور میں بھی اکثر و بیشتر ان کے ساتھ جاتا رہتا تھا۔ اس لیے کم عمر ہونے کے باوجود جنگلات کے بے شمار اسرار و رموز سے واقف ہو گیا تھا۔ ان تجربات سے مجھے اپنی آئندہ زندگی میں کیا فائدے ہوئے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اپنی مہم جو طبیعت کی وجہ سے میری زندگی کا ایک عرصہ باپ کے ساتھ گزرا، اس لیے میں نے تو نہ کبھی گھریلو معاملات میں دلچسپی لی اور نہ ہی کبھی جائیداد وغیرہ کے بارے میں سوچا۔ پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب میرے والد ایک دشوار گزار مہم میں کام آ گئے اور میرے بڑے بھائیوں کا جائیداد کے بٹوارے کا خیال آیا۔ میں چونکہ شروع ہی سے اپنے بھائیوں سے الگ تھلگ رہا تھا، اس لیے مجھے ان کی طبیعتوں کے بارے میں زیادہ واقفیت حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ جب جائیداد کے بٹوارے کا مسئلہ اٹھا تو میرے بڑے بھائیوں نے اور میری بھاوجوں نے دل بھر کر میری حق تلفی کی۔ نقد رقم جو کچھ بھی تھی وہ پہلے ہی ہڑپ کر چکے تھے۔ غیر منقولہ جائیداد کا بٹوارا بھی کچھ اس طرح ہوا کہ جتنی اچھی اچھی زمینیں اور عمارتیں تھیں وہ بڑے بھائیوں نے اپنے حصے میں لے لیں، اور مجھے ایک ایسا مکان دیا جو ایک عرصے سے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خالی اور ویران تھا۔ جب میں نے اپنی اس کھلی حق تلفی کے خلاف احتجاج کیا تو میرے بھائی، جو میرے والدین کی زندگی میں مجھ سے بے پناہ محبت کا دم بھرا کرتے تھے، چراغ پا ہو گئے اور کھلے لفظوں میں کہہ دیا، جائیداد کی تقسیم جو ہم نے مناسب سمجھی کر دی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہاری حق تلفی کی ہے تو بڑے شوق سے جا کر عدالت میں درخواست کر دو اور مقدمہ چلاؤ، ہم وقت آنے پر اپنا دفاع بھی کر لیں گے۔ بھائیوں کا رویہ اور روکھا جواب سن کر مارے غصے کے میرا خون کھول اٹھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ انہیں اس حق تلفی اور سرد مہری کا مزہ چکھا دوں اور ایسا سبق دوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھیں، لیکن یہ سوچ کر کہ انہیں ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کی روح کو تکلیف ہوگی، میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا۔ میری خاموشی کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے سب سے بڑے بھائی پولیس کے محکمے میں انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے مجھے اس بات کی دھونس دی تھی کہ اگر میں نے جائیداد کے معاملے میں زیادہ چون چرا کی تو وہ مجھے کسی کیس میں ملوث کرا کے جیل میں سڑوا دیں گے۔ میں چونکہ خود کو بے یار و مددگار سمجھ رہا تھا، اس لیے صبر کر کے واپس اپنی ملازمت پر چلا آیا، لیکن اپنے دل میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ کم از کم اپنے سب سے بڑے بھائی سے انتقام ضرور لوں گا۔ ڈیوٹی سے واپس آ کر میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو جو میرے حصے میں آیا تھا اونے پونے بیچ کر حاصل ہونے والی رقم بینک میں جمع کرا دی، اور وقتی طور پر سب کچھ بھول کر ملازمت میں دلچسپی لینے لگا۔ میرے افسرانے چونکہ میری کارکردگی اور سادہ طبیعت سے بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے 1 سال بعد ہی مجھے ترقی دے کر فارسٹ آفیسر کے عہدے پر فائز کر دیا، اور اس کے چند روز بعد مجھے شمالی ہندوستان میں نینی تال کے قریب علاقے کی ایک چیک پوسٹ کا انچارج بھی بنا کر بھیج دیا گیا۔ نینی تال کو اگر ہندوستان کی جنت کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی یہاں بڑے آدمیوں کے قافلے جوک در جوک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وسط مارچ سے لے کر جولائی تک یہ حصہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔
मुझे नैनीताल के इलाकाई जंगलात की तकर्री का परवाना हासिल करके जो खुशी हुई थी वो ज़्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी, जिसकी एक वजह ये थी कि मैं हंगामा पसंद नहीं था, और वजह जो मेरे लिए बाइस ज़हमत साबित हुई वो ये थी कि नैनीताल में बगर्ज़ तफरी आने वाले अक्सर अफसरान और मुअज़्ज़ज़ीन जिधर उनके सिंग समाते बंदूकें उठाए जंगलात में सैर व शिकार के लिए आ जाते थे, और मुझे उनसे आए दिन उलझना पड़ता था, क्योंकि उन जंगलात में बगैर इजाज़तनामे के जानवरों का शिकार कानूनन मना था, और ऊपर से इस सिलसिले में बड़े सख्त अहकामात आए दिन मौसूल होते रहते थे। अपने नए अहदे का चार्ज संभाले अभी मुझे 2 माह भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रोज़ मैं अपने फ़र्ज़ की बजाआवरी में एक शिकारी से उलझ गया, जिसने मेरे मना करने के बावजूद एक हिरन पर गोली दाग दी थी। शिकारी का निशाना अगर ख़ता हो जाता तो मुमकिन था बात न आगे न बढ़ती, लेकिन हिरन चूंकि मर चुका था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर जो मुंह में आया शिकारी को सुना डाला। इस बात का इल्म मुझे तीसरे रोज़ हुआ कि जिस शिकारी को मैंने डांटा फटकारा था वो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर का साला था, जिसने अपने बहनोई से जाकर मेरी उल्टी सीधी शिकायत की थी, और अब मुझे उसकी लंबी चौड़ी शिकायत पर नैनीताल से हटाकर सोना घाट के जंगली इलाके में तैनाती के अहकामात मौसूल हुए थे। जब बिला वजह मुझ पर यह इताब नाजिल हुआ तो मेरा खून खौल उठा। चुनाचे चार्ज देने से पेशतर मैं 2 रोज़ की रुख्सत मंजूर करा के सीधा अपने हेड क्वार्टर गया, और वहाँ जाकर अपने एक आला अफसर से मिला जो मेरे वालिद का दोस्त रह चुका था। गो कि मेरा ये ऑफिसर हिंदू था, लेकिन वालिद साहब की दोस्ती की वजह से हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी सिफारिश पर मेरी तरक्की भी हुई थी। चुनाचे जब मैं उससे मिला तो पहले ठंडे दिल से मेरी शिकायत सुनता रहा, फिर बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोला, मिस्टर अफजल बेग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मामला चूंकि कर्नल हार्डिंग जो डिप्टी कमिश्नर था उसका है, इसलिए हम उसकी शिकायत पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन जनाब, मैंने जो कुछ भी किया वो कानून की पैरवी में किया है। वो बोले, मुझे इल्म है कि तुमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिर भी ब्रिटिश अफसरों को नाराज़ करना हमारे बस से बाहर की बात है। अपने अफसर की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ, लेकिन लाला अमरनाथ चूँकि वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए मैंने बहस मुनासिब न समझी और होंठ चबाकर खामोश हो गया। लाला अमरनाथ मेरे चेहरे से गालिबन मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोले, अफजल बेग, हर चंद के तुम्हारे तबादले के अहकामात जारी करते हुए मुझे दुख हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सोना घाट जाकर खुशी महसूस करोगे। इस इलाके में तुम्हें अपनी महमजू तबीयत की दिल बस्तगी के लिए लातादाद मौके मिलेंगे। लाला अमरनाथ के समझाने बुझाने से मेरी झिल्लाहट किसी कदर कम हो गई। दूसरे रोज़ मैंने नैनीताल जाकर नए फॉरेस्ट ऑफिसर त्रिपाठी को चार्ज दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आबाई शहर आ गया, जहां 5 रोज़ गुजरने के बाद अपनी नई तकर्री की जगह जाकर चार्ज लेना था। सोना घाट अपने महल्ले वकू के एतबार से जनूबी हिंद के तराई के इलाके में वाक़या था। हर चंद की जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन महकमे के दूसरे लोगों से इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। फॉरेस्ट ऑफिसरों की एक बड़ी तादाद उस इलाके की तकर्री के ख्याल ही से यूं खाइफ रहती थी जैसे बकरी शेर से। 2 अफसरान जो सोना घाट के इलाके में तैनात रह चुके थे, उनका ख्याल था कि इस इलाके पर किसी बदरू का साया है जो अपने कामों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, और अगर कोई दलेर उसकी राह में हायल होता है तो चंद ही दिनों में पुरस्रार तौर पर मर जाता है या फिर जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। सोना घाट के सिलसिले में यूं तो बेशुमार पुरस्रार और हैरत अंगेज़ रवायतें मशहूर थीं, लेकिन एक बात जो ख़ास तौर पर ज़्यादा मशहूर थी वो सोना घाट के एक हिंदू पुजारी पंडित मोहन लाल की शख्सियत से मुतालिक थी, जिसे उसकी मौत के बाद जलाने के बजाय उसकी वसीयत के मुताबिक एक संदली ताबूत में बंद करके उस इलाके के सबसे पुरानी मंदिर के तहखाने में रख दिया था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो पंडित मोहन लाल की मौत के वक्त सोना घाट में तैनात था, उसने वहां से तबादले के बाद एक ऐसा इंकशाफ किया था जिससे पुजारी की शख्सियत न सिर्फ ये कि ज़्यादा पुरस्रार बन गई थी, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक उसका शोहरा हो गया था, और पुजारी के हज़ारों अकीदतमंद पैदा हो गए थे जो दूर दराज से आते और पुजारी के मंदिर में भजन गाकर वापस चले जाते। फॉरेस्ट ऑफिसर का बयान था कि उसने पुजारी की मौत के 3 माह बाद जब उसकी लाश देखी तो उस वक्त भी वो गलने और सड़ने के बजाय अपनी असली हालत में मौजूद थी। ताज्जुब की बात यह थी कि पुजारी की लाश पर कोई ऐसा मसाला भी नहीं लगाया गया था जो आम तौर पर लाशों को लंबी मुद्दत तक
محفوظ رکھنے کے لیے लगाیا جاتا ہے۔ پرانے مندر کے نئے پجاری نے فارسٹ آفیسر کو بتایا کہ پنڈت موہن لال مرنے سے بیشتر بھی پراسرار حیرت انگیز قوتوں کا مالک تھا اور سونا گھاٹ پر آنے والی ہر تباہی کی پیشن گوئی قبل از وقت کر دیا کرتا تھا۔ نئے پجاری کے علاقے کے دوسرے مقامی ہندوؤں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پنڈت موہن لال کی کوئی پیش گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ خود اپنی موت کے بارے میں بھی اس پراسرار پجاری نے 10 روز پیشتر اعلان کر دیا تھا اور اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ اس کی لاش کو جلانے کے بجائے پرانے مندر کے تہخانے میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ سونا گھاٹ پر آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ اپنی پراسرار طاقتوں سے جاری رکھ سکے۔ اس نے اس بات سے بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا کہ اس کی لاش کو جلا دیا گیا تو سونا گھاٹ کا علاقہ تباہ برباد ہو کر خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ مقامی ہندوؤں نے اس کی وصیت کے مطابق شمشان بھومی لے جانے کے بجائے سندلی تابوت میں بند کر کے پرانے مندر کے تہخانے میں رکھ دیا۔ غرض یہ کہ سونا گھاٹ کے بارے میں ہزاروں روایتیں مشہور تھیں۔ کچے عقیدت کے لوگوں کی مشترکہ رائے یہی تھی کہ پجاری کی لاش سونا گھاٹ میں نہ موجود ہوتی تو وہ بدرو جو آئے دن علاقے پر تباہیاں لانے کا باعث بنتی تھی یقیناً پورے سونا گھاٹ کو نیست و نابود کر دیتی۔ ایک عام خیال یہ بھی مشہور تھا کہ جب تک پنڈت موہن لال اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں سونا گھاٹ کا علاقہ محفوظ رہے گا۔ اپنے آبائی شہر میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے 2-3 روز کے اندر سونا گھاٹ جانے کے لیے اپنا سامان سفر ٹھیک کیا۔ پھر محکمے کے فارسٹ آفیسر اوم پرکاش سے ملاقات کی جو کسی زمانے میں کچھ دنوں کے لیے سونا گھاٹ کی چیک پوسٹ پر تعینات رہ چکے تھے۔ ہیڈ کوارٹر پر اس وقت بھی یہی ایک افسر موجود تھا جو مجھ سے سونا گھاٹ کے چشمدید واقعات بیان کر سکتا تھا۔ اوم پرکاش سے میری کچھ زیادہ ملاقات نہ تھی، لیکن جس وقت میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ایک لمحے کے لیے اوم پرکاش کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر اس وقت جو تاثرات ابھرے تھے ان سے ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ بعد میں جب میں نے اسے اپنے تبادلے کے کاغذات دکھائے تو اسے یقین آ گیا، لیکن کچھ دیر تک وہ یوں چپ رہا جیسے اپنی بکھری ہوئی یادداشتوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے جو جملہ سب سے پہلے مجھ سے کہا وہ کچھ عجیب ہی سا تھا۔ افضل بیگ، کیا تم کسی طرح اپنے تبادلے کے احکامات منسوخ نہیں کرا سکتے؟ کیا حقیقتاً سونا گھاٹ کا علاقہ اتنا ہی پراسرار ہے جتنا اس کے بارے میں مشہور ہے؟ میں نے بڑی لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اوم پرکاش نے کچھ ایسی نگاہوں سے مجھے گھورا جیسے اسے میرے صحیح دماغ ہونے پر شبہ ہو رہا ہو۔ اس کی حیرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید وہ میری مہم جو طبیعت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ شاید ان باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں جو سونا گھاٹ کے بارے میں مشہور ہیں۔ اوم پرکاش کی آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ میں اس وقت انہی باتوں کے سلسلے میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اوم پرکاش کی الجھن نے میرے تجسس کو اور ہوا دی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ سونا گھاٹ کا نام سنتے ہی وہ کچھ خوفزدہ انداز میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بڑی دیر تک میں اوم پرکاش سے اصرار کرتا رہا اور وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو مجھے سونا گھاٹ کے بارے میں اپنے تجربات بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ جتنی دیر تک وہ مجھے اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتاتا رہا میں خاموش بیٹھا بڑی دلچسپی سے اس کے ایک ایک جملے کو ذہن نشین کرتا رہا۔ اوم پرکاش نے مجھے جتنی باتیں اور جتنے واقعات بتائے ان میں سے بیشتر میں نے پہلے ہی سن رکھے تھے، سوائے ایک اہم واقعے کے جو میرے لیے نہ صرف یہ کہ نیا تھا بلکہ تعجب خیز بھی تھا۔ اوم پرکاش کے بیان کے مطابق سونا گھاٹ کے پرانے مندر میں جہاں پجاری کی لاش تہخانے میں موجود تھی کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف مندر کا پجاری ہفتے میں ایک بار تہخانے میں جا کر پنڈت موہن لال کی لاش کو اس غرض سے جھانک آتا تھا کہیں گلنے سڑنے کے آثار تو پیدا نہیں ہو رہے۔ علاقے کے افسران اگر لاش دیکھنا چاہتے تو پہلے انہیں نئے پجاری کی اجازت لینا پڑتی اور نیا پجاری ایسے موقع پر اس افسر کے ساتھ ہوتا تھا۔ اوم پرکاش نے جو واقعہ مجھے سنایا وہ ایک سادھو کے بارے میں تھا جو سونا گھاٹ کے علاقے میں نیا آیا تھا۔ سادھو کے ساتھ اس کے 2-4 چیلے بھی تھے جن کے جسموں پر محض لنگوٹی ہوا کرتی تھی اور وہ تمام جسم پر بھبوت ملے سارے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے۔ بڑے سادھو کے بیان میں کچھ ایسا جادو تھا کہ سونا گھاٹ کے مقامی ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اس کی بھکتی کرنے لگی۔ سادھو کے بارے میں جو بات خاص طور پر نوٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اناج کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا بلکہ صرف جنگلی پھلوں اور جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتا تھا اور بے حد ہٹا کٹا نظر آتا تھا۔ مقامی ہندوؤں نے سادھو کے لیے ایک دھرم شالہ میں بندوبست کرنا چاہا تو سادھو نے انکار کر دیا۔ دن بھر وہ علاقے میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور رات ہوتے ہی اس بوڑھے برگد کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا جو ہندوؤں کے مرگھٹ کے قریب تقریباً 70 سال سے موجود تھا۔
उस दरख्त के नीचे बैठकर साधु तमाम रात जाप करता। चुनाचे उसके बारे में रफ्ता रफ्ता ये बात भी मशहूर होने लगी कि वो किसी अवतार का भेजा हुआ है। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक साधु तकरीबन 1 माह तक अपने रोजमर्रा के मामूल पर अमल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसने ये ऐलान कर दिया कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है, और ये कि वो बहुत जल्द पुजारी के बारे में एक ऐसी सनसनीखेज ऐलान करने वाला है जिसके बाद सोना घाट के पुजारी का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। साधु के ऐलान से सोना घाट में हर तरफ खौफो हिरास फैल गया। जो लोग पंडित मोहन लाल की शक्ति के कायल थे वो साधु को बुरा भला कहने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु की खामोश हिमायत कर रहे थे। साधु के ऐलान की खबर जंगल की आग की तरह सोना घाट में फैल गई। उसके बाद जो वाकया ज़रूर पजीर हुआ वो इंतहाई हैरत अंगेज था। साधु ने पुराने मंदिर के नए पुजारी से मिलकर इस बात की दरख्वास्त की थी और दावा किया था कि अगर उसे पंडित मोहन लाल की अर्थी एक नज़र देखने की इजाज़त मिल जाए तो वो अपना दावा सच कर दिखाएगा कि सोना घाट के पुजारी के मुतालिक जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है। नए पुजारी ने साधु को उसके इरादे से बाज रखने की बहुत कोशिश की, उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो नए पुजारी ने इस शर्त के साथ उसे इजाज़त दे दी कि जिस वक्त वो तहखाने में उतरे उस वक्त मकामी पंडितों और भक्तों की एक बड़ी तादाद का वहाँ होना ज़रूरी है, ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि साधु और सोना घाट के पुजारी में से किसकी शक्ति ज़्यादा है। साधु इस शर्त पर फौरन ही आमादा हो गया। अगले दिन सूरज ढलने से तकरीबन 2 घंटे पेशतर तयशुदा मंसूबे के तहत मकामी भक्तों और पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद पुराने मंदिर के सामने मौजूद थी। मकामी हिंदुओं का हजूम भी उस तमाशे की देखने की गर्ज से वहां जमा हो गया था। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक वो भी इस हजूम में एक खामोश तमाशाई की हैसियत से मौजूद था। भजन और प्रार्थना के बाद सब लोगों की नज़रें साधु पर जम गईं, जो अपने खास चेलों के दरमियान सीना ताने बैठा था। उसके नंग धड़ंग जिस्म पर स्याह और लंबे लंबे बाल बड़े खौफनाक लग रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। सर पर किसी अंडे के छिलके की तरह साफ था, लेकिन चुटिया खासी घनी और लंबी थी। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी के इशारे पर वो मुस्कुराता हुआ उठा और मंदिर की 24 सीढ़ियों की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा, जो एक ऊंचे चबूतरे से गोलाई की शक्ल में घूमती हुई तहखाने के उस बड़े दरवाजे तक चली गई थी, जहां भगवान की मूर्ति और दूसरे मजहबी देवी देवताओं की शक्लें बनी हुई थी। सोना घाट के पुजारी को, जिसके बारे में पंडितों और भक्तों का ख्याल था कि वो मरा नहीं, अमर हो गया है, तहखाने में महफूज किए हुए 1 साल से कुछ ऊपर का अरसा गुजर चुका था। इस मुद्दत में नवारिद साधु वो पहला शख्स था जिसने पंडित मोहन लाल की शक्ति को ललकारने और झूठा साबित करने की जुर्रत की थी। चुनाचे साधु के कदम जैसे जैसे चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे, लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा तारी था। हर फर्द की निगाहें साधु पर जमी हुई थी, जो बड़ी शान से अकड़ा हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। 24 सीढ़ियों वाले ऊंचे चबूतरे पर पहुंचकर साधु रुक गया। उसने पलटकर हजूम पर नजर डाली। उसके होंठों पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट नजर आ रही थी। आंखें किसी आदमखोर जानवर की तरह चमक रही थी। चंद लम्हे वो सीना ताने चबूतरे पर खड़ा हजूम को देखता रहा। फिर उसके होंठ हिले और उसकी ठोस और करख्त आवाज उभरी, सजनों, मैं एक बार फिर इस बात का दावा करता हूँ कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो किस्से और कहानियां मशहूर की गई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। मनुष्य जात का भगवान की शक्ति के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं देवी और देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपने कहे को सच्चा करके दिखाऊंगा, लेकिन इस बात से मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पुराने पुजारी की अर्थी का अपमान करना चाहता हूँ। साधु ने इतना कहकर पूरे हजूम पर एक नज़र डाली। पुराने मंदिर के पुजारी और मजमा में मौजूद पंडितों और भक्तों की कुशादा पेशानियों पर बल पड़ गए। साधु अपनी जगह सीना ताने खड़ा मुस्कुराता रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता घूमता और सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे वो अगली सीढ़ी पर कदम रखता था, उसका निचला धड़ लोगों की निगाहों से ओझल होता जा रहा था। फिर उस वक्त जबकि उसका सर लोगों को साफ नजर आ रहा था, एक ऐसा मंजर देखने में आया कि हजूम में लोगों के चेहरे मारे खौफ के पीले पड़ गए और कुछ लोग तो चीख मारकर बेहोश हो गए थे। तहखाने की सीढ़ियों से लोगों ने एक नीले रंग का शोला सा लपकता देखा। उसके बाद साधु की करबनाक चीखें गूंजने लगीं। सबसे पहले पुराने मंदिर का पुजारी अपनी जगह से उठा। फिर उसके बाद दूसरे पुजारी और पंडित भी अपनी जगह से उठकर सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़े। बाद में करीब पहुंचकर उन्होंने साधु को जिस हालत में देखा, उससे उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हट्टा कट्टा साधु सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था और उसका सारा बदन और चेहरा झुलस कर इस तरह मस्क हो गया था कि अंदर की चर्बी झांकने लगी थी। भक्तों और पुजारी के चेहरे खुशी से दमक उठे। पंडितों ने तजवीज़ पेश की कि साधु की लाश को सजा देने की खातिर दरिया में बहाकर आबी जानवरों की भेंट कर दिया जाए,
लेकिन पुजारियों ने इस राय से इत्तेफाक न किया और साधु की लाश को धर्म के मुताबिक जलाकर राख कर डाला और उसकी राख को पानी में बहा दिया। साधु के साथ सोना घाट के पुजारी की शक्ति के इस इबरतनाक मुजाहरे ने लोगों के दिलों पर ऐसा खौफो हिरास तारी कर दिया कि वो दिन के औकात में भी तहखाने वाली सीढ़ियों से कतराने लगे थे। ओम प्रकाश चूंकि इस वाक़े का ऐनी शाहिद था, इसलिए जब मैंने उसकी ज़ुबानी ये पुरस्रार वाक़या सुना तो मैं सोच में पड़ गया। मुसलमान होने की हैसियत से मैं इन अकीदों का कायल नहीं था जो जादू, टोनों और असेबी हालात की पैदावार बनकर लोगों के दिलों पर अपनी दहशत जमा लेते हैं। फिर भी ओम प्रकाश ने जो कुछ मुझे बताया था वो मेरे लिए जहाँ एक हैरत अंगेज़ वाक़या था, वहाँ उस वाक़े ने मेरे ज़ौक़ तजस्सुस को और भी भड़का दिया और मैंने दिल ही दिल में इस बात का अहद कर लिया कि सोना घाट जाकर मैं सबसे पहले पंडित मोहन लाल की लाश की कुव्वत का राज मालूम करने की कोशिश करूंगा। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? ओम प्रकाश ने मुझे खामोश पाकर कहा, क्या इस वाक़े को सुन लेने के बाद भी तुम सोना घाट से अपने तबादले के अहकामात मनसूख कराने की कोशिश नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं। मैं ओम प्रकाश की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर जाने के इरादे से उठने लगा तो ओम प्रकाश ने मुझे रोकते हुए कहा, अफजल बेग, मैं तुमको एक और बात बताना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम इसका कोई गलत मतलब न निकालो। तुम जो कुछ कहना चाहते हो बेधड़क कह डालो। मैं वादा करता हूँ कि किसी गलत ख्याल को दिल में जगह नहीं दूंगा। ओम प्रकाश ने फौरन ही मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानियों वो यूं ही मेरे चेहरे पर नजरें जमाए मुझे घूरता रहा, जैसे मेरी कही हुई बात की सदाकत पर गौर कर रहा हो। फिर दबी जुबान में बोला, सोना घाट में मैंने किसी मुसलमान को मुश्किल ही से फलते फूलते देखा है। क्या तुम ये बावर कराना चाहते हो ओम प्रकाश कि सोना घाट का पुजारी अपनी हदूद में मुसलमानों के वजूद को अच्छी नज़रों से नहीं देखता? मैंने इस बार कुछ ऐसे सर्द लहजे में ओम प्रकाश को मुखातिब किया कि वो घबरा गया और बौखलाए हुए लहजे में बोला, अफजल बेग, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हें डराने या खौफजदा करने की खातिर ये बात नहीं कही थी, बल्कि जो कुछ वहाँ देखा और महसूस किया था वो बता दिया, महज तुम्हारी भलाई और बेहतरी की खातिर। मुझे अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई, चुनाचे मैंने नरम आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज़ नाराज़ नहीं हूँ, ना ही मैंने इसका बुरा माना है, बल्कि सिर्फ अपना एक ख्याल जाहिर किया था। अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है तो मेरी एक बात और मान लो, इसके बाद तुम्हारे जी में जो आए करना, मैं मना नहीं करूँगा। सोना घाट से अपने तबादले के अहकामात को मनसूख कराने के सिवा मैं तुम्हारी हर बात सुनने और मानने को तैयार हूँ, मैंने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि तुम सोना घाट जाने से पेशतर ठाकुर महाराज से ज़रूर मिल लो। ओम प्रकाश ने मुझे समझाते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, ठाकुर जी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, उनका कहा मैंने आज तक गलत होते नहीं देखा। ठाकुर महाराज के बारे में मैंने अपने दूसरे हिंदू दोस्तों से भी बहुत कुछ सुन रखा था। सभी इस बात के कायल थे कि ठाकुर महाराज जो बात जुबान से निकालते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। कभी कोई आदमी उनके पास से खाली हाथ मायूस नहीं लौटा। दूर दराज इलाकों से भी उनके अकीदतमंद और ज़रूरतमंद उनकी चरण छूने की गर्ज से आया करते थे और खुश खुश वापस पलट जाते थे। ठाकुर महाराज के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और उन्होंने अपनी पूरी जवानी बनारस के मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा पाठ में गुजारी थी और अब अपना बुढ़ापा लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मुझे ज्योतिष, नजूम, अमल, रील और तावीज़ गंडों पर कभी भी एतकाद नहीं रहा। लेकिन ओम प्रकाश ने मुझसे 2-3 बार इसरार किया कि मैं ठाकुर महाराज से मिल लूँ, तो बादले नख्वास्ता मैंने अपनी आमादगी का इजहार ये सोचकर कर दिया कि इसी बहाने ज़िंदगी में एक और तजर्बा हासिल हो जाए। कुछ मुझे ओम प्रकाश पर भी शुबा हो रहा था कि शायद वो किसी ख़ास वजह से मुझे सोना घाट जाने से रोकना चाहता है या फिर अपने मजहबी देवी देवताओं और ऋषि मीनों के करिश्मों से मुतासिर कराने का ख्वाहिशमंद है। बहरहाल मैंने उसके इसरार पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि ख्वामखा हालात कुछ ही क्यों ना हो, मैं उनसे कतई तौर पर मुतासिर न होऊंगा और ना ही सोना घाट जाने का इरादा किसी कीमत पर तर्क करूंगा। ओम प्रकाश दूसरे ही दिन मुझे ठाकुर महाराज के पास ले गया, जहाँ खुले मैदान में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ठाकुर जी के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी ही नजर आ रही थी और पूरे जिस्म पर संदल और गेरो मिला हुआ था। आंखें बंद किए वो एक पीपल के पुराने दरख्त के तने के साथ बने हुए गोल और पक्के चबूतरे पर बैठे माला जपने में मगन नजर आ रहे थे। जहाँ तक उनकी उम्र का ताल्लुक था तो मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो 16 साल से कुछ ज़्यादा ही के थे। उनके जिस्म पर नजर आने वाले बाल रुई की तरह सफ़ेद और नरम नरम दिखाई दे रहे थे। पूरे जिस्म पर झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी। चेहरे और पसलियों की हड्डियाँ साफ तौर पर नजर आ रही थी।
मैं ओम प्रकाश के साथ मजमा में एक तरफ बैठा तमाशा देखता रहा। अपने अपने नंबर से हर आदमी उठकर पहले महाराज के कदम छूता, फिर अपनी बिपता या राम कहानी शुरू कर देता और उसके जवाब में कभी ठाकुर जी माला वाला हाथ उठाकर उसे तसल्ली दे देते और कभी इशारे से भगा देते। मुंह से किसी से भी कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, चेहरे की कैफियत में ज़रूर उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था, लेकिन मैंने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की कि ठाकुर जी ने एक बार भी अपनी बंद आंखें खोलकर किसी अकीदतमंद की तरफ नहीं देखा था। मुझे अपने नंबर के लिए तकरीबन 4 घंटे तक मुंतज़िर रहना पड़ा। इस अरसे में मेरे ऊपर उकताहट सी तारी हो गई थी। एक आध बार तो दिल ने कहा कि मैं भी किस लग़वियत में पड़ गया हूँ, उठो और भाग चलो। लेकिन ओम प्रकाश के दिल शिकनी ना करने के ख्याल से मैं दिल पर जबर किए बैठा रहा। वैसे मैंने ओम प्रकाश से ये बात पहले ही कह रखी थी कि वो जो चाहे मेरे सिलसिले में कह सकता है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से कुछ न बोलूँगा। खुदा खुदा करके जब मेरी बारी आई तो मेरे अलावा 10-15 लोग और बाकी रह गए थे। ओम प्रकाश मेरा हाथ थामे ठाकुर महाराज के सामने जाकर खड़ा हुआ तो एक बार फिर मेरे दिल ने कहा, अफजल बेग, अब भी मौका है, निकल भागो। लेकिन अब जबकि मैं अपना अच्छा खासा कीमती वक्त ज़ाया कर चुका था, दिल का मशवरा भला किस तरह कबूल कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन की तमाम कुव्वतों को यकजा किया और ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो बदस्तूर लकड़ी की वजनी माला पर खुदा जाने किस मंत्र का जाप कर रहे थे। जय महाराज, ओम प्रकाश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से ज़रा झुकते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो मेरे बारे में आगे कुछ कहता, ठाकुर जी ने अपना उल्टा हाथ फिजा में बुलंद करके उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके साथ ही उनका पूरा चेहरा सुर्ख अंगारे की मानिंद दहक उठा। जुर्रियों ज़दा कांपते हुए हाथ लकड़ी की माला पर तेज तेज चलने लगे। ओम प्रकाश की हालत भी कुछ गैर नजर आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह बदस्तूर लापरवाह बना बैठा महाराज को देखता रहा। कुछ देर तक वो जलाल की हालत में रहे, फिर मेरी तरफ चेहरा घुमाकर आंखें खोल दी। न जाने ठाकुर जी की आंखों में कैसी चमक थी कि मैंने अपने वालिद के साथ बड़े बड़े दुश्वार गुजार मार के सर किए थे, लेकिन ठाकुर जी महाराज की आंखों की चमक कुछ ऐसी पुरस्रार और सहर अंगेज थी कि मैं चाहने के बावजूद अपनी तवज्जो दूसरी तरफ ना कर सका। ठाकुर महाराज कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर उनके चेहरे की करख्तगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और उनके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हो गए जैसे किसी मुशफ़िक उस्ताद के अपने शागिर्द के लिए होते हैं। ओम प्रकाश ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर मुझे घूरते हुए बोले, तुम मुझसे पूछने आए हो कि तुम्हारा सोना घाट जाना मुनासिब है या नहीं? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, जी हाँ। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हैरत अंगेज ताकत को जन्म लेते देख रहा हूँ, ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े सुरमाओं की भी हेच हो गई। ठाकुर महाराज ने मुझे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, क्या सोना घाट का पुजारी मुझे अपनी हदूद में कबूल कर लेगा? मैंने दिल कड़ाकर पूछ लिया। लड़के, तुम मेरी शक्ति का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर महाराज के चेहरे पर दोबारा जलाल तारी हो गया। करख्त लहजे में बोले, मैं तुम्हारे मन का भेद भी बता सकता हूँ। क्या ये गलत है कि तुम सोना घाट के पुजारी की शक्ति का राज जानने के लिए अपने दिल में पक्का अहद कर चुके हो? मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। तो ये भी सुन लो, जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुमने सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की तो तमाम जीवन दर बदर की खाक छानते फिरोगे। काली शक्तियां तुम्हें कभी आराम और सुकून से ना रहने देंगी। फिर कोई उपाय बताइए महाराज, ओम प्रकाश बोला। मैं खामोश खड़ा ठाकुर महाराज के चेहरे को घूरता रहा। चूंकि मैं खुद को पहले से तैयार कर चुका था कि उसके किसी बात से मुतासिर ना होऊंगा, इसीलिए अपने ऊपर कोई ख़ास कैफियत तारी नहीं हुई, बल्कि मैं ये सोचने लगा कि मुमकिन है ठाकुर महाराज मुझे अपनी बातों के सहर से मरूब करना चाहते हैं। अचानक वो मुझे घूर कर बोले, मैं जानता हूं कि तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की कृपा से मेरी आंखों में इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं तेरे मन को पढ़ सकूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, महाराज आप गलत समझ रहे हैं, बकवास मत कर बालक। ठाकुर महाराज का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। अपनी चमकदार आंखें मेरी आंखों में डालकर वो जोर से कड़के, क्या तेरे मन की ये इच्छा नहीं कि तू अपने कुंबे वालों से बदला ले? एक लम्हे को मैं चौंक उठा। ठाकुर महाराज से सचमुच मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था। मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था कि अगर उसकी ये बात सच हुई और मैं पुरस्कार कुव्वतों का मालिक बन गया तो सबसे पहले अपने बड़े भाई से इंतकाम लूंगा, जिसने मुझे जेल में सड़ा डालने के लिए धमकी देकर जायदाद का ज्यादा हिस्सा हड़प कर लिया था। बालक, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। ठाकुर महाराज ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा,
नैनीताल से तेरा तबादला भगवान की मर्जी से हुआ है और अब देवताओं की मर्जी भी यही है कि तू सोना घाट जाए। लेकिन खबरदार, जो तूने सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की, तमाम जीवन दुख उठाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरे शरीर में बलवान जैसी शक्ति पैदा हो तो तुझे पुजारी के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। इसी में तेरी जीत है। महाराज, ओम प्रकाश जल्दी से बोला, अगर मेरा दोस्त अपना तबादला मनसूख करा ले तो क्या हर्ज है? ये नामुमकिन है। मैं देख रहा हूं कि तेरा साथी अटल इरादों का मालिक है। दुनिया की कोई ताकत इसे सोना घाट जाने से बाज नहीं रख सकती। सोना घाट के इलाके से इसको एक नया जीवन मिलेगा, ऐसा जीवन जिसमें कदम कदम पर कठिनाइयां तो जरूर होंगी, लेकिन ये उन कठिनाइयों को झेल जाएगा। और फिर ठाकुर महाराज खामोश हो गया तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने जल्दी से पूछा, फिर क्या होगा महाराज? फिर तू ऐसी शक्ति का मालिक होगा कि जिसके आगे देवी देवताओं की शक्तियां भी हेच होंगी। जो तू चाहेगा वही होगा। तेरी हर ख्वाहिश पलक झपकते पूरी होगी। पर मेरी इस बात को गिरा में बांध ले कि तू सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की हिमाकत नहीं करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप खड़ा सुनता रहा कि जाने क्यों ठाकुर बार बार मुझे सोना घाट के पुजारी को कोई तकलीफ ना पहुंचाने की ताकीद कर रहा है। इस राज को पाने के लिए मेरा शौक तजस्सुस और बढ़ गया। ओम प्रकाश बदस्तूर दोनों हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। अचानक महाराज ने दोनों आंखें बंद कर लीं। मैं समझा कि शायद उसे और कुछ नहीं कहना। चुनाचे मैं ओम प्रकाश को इशारे से चलने को कहा, मगर इसके कबल के मैं वहां से हटता, ठाकुर महाराज ने गरजती आवाज में मुझे मुखातिब करके कहा, बालक, एक और बात गिरा से बांध ले। तुझे पुरस्कार शक्ति हासिल करने के लिए अपना धर्म भी बदलना होगा। मैं अचानक भड़क उठा, नामुमकिन। भगवान जो चाहे वो मुमकिन हो जाता है। तुझे हर हालत में अपना धर्म बदलना होगा। हालात तुझे मजबूर कर देंगे। ठाकुर महाराज ने आंखें बंद किए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू एक कमजोर हनुमान महाराज से भी ज्यादा शक्ति का मालिक होगा। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अगर ओम प्रकाश और वहां बैठे हुए दूसरे अकीदतमंदों का ख्याल ना होता तो मुमकिन था कि मैं महाराज की शान में गुस्ताखी कर बैठता। बहरहाल मैंने खून का घूंट पीकर अपने ऊपर काबू पाया और ठाकुर महाराज को घूरता हुआ वापस आ गया। वापसी पर मेरा साथी ओम प्रकाश तमाम रास्ते मुझे समझाता रहा कि जो कुछ ठाकुर महाराज ने मुझे हिदायत की है मैं उसी पर अमल करूं, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। घर आकर मैंने दोबारा अपने सफरी सामान को चेक किया कि कहीं ज़रूरत की कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई, और फिर अगले ही दिन खुदा का नाम लेकर सोना घाट के लिए रवाना हो गया। सोना घाट पहुंचकर मैंने जिस फॉरेस्ट ऑफिसर से अपने ओहदे का चार्ज लिया उसका नाम रविशंकर था। यह शख्स पिस्ता कद और दोहरे जिस्म का एक खूबसूरत नौजवान था। जिस्मानी एतबार से भी अगर उसे खूबसूरत कहा जाए तो बेजाना होगा। हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त मुझे ओम प्रकाश ने उसके बारे में बताया था कि वो एक हंसमुख, मिलनसार और दलेर किस्म का अफसर है, लेकिन मैंने रविशंकर को इसके बरखिलाफ पाया। पहली बार जब मैंने उससे मुलाकात की और उसे बताया कि मैं उससे चार्ज लेने की गर्ज से आया हूँ, तो उसकी कुशादा पेशानी पर नागवारी की लातादाद आड़ी तिरछी सलवटें उभर आईं। उसके चेहरे पर अचानक उभरने वाले तासुरात देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद उसे सोना घाट में मेरा आना तो पसंद नहीं आया, या फिर जानबूझकर मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैंने यहाँ आकर किसी बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। मुझे ओम प्रकाश की कही हुई बात याद आ गई कि सोना घाट के इलाके में किसी मुसलमान को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इस ख्याल के आते ही मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने अपने तई बड़ी गर्मजोशी से रविशंकर से मुसाफा किया, फिर उसके कहे बगैर ही एक खाली कुर्सी पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठ गया। रविशंकर कुछ देर संजीदा बैठा मेरे चेहरे को यूं तकता रहा जैसे मैं उसके लिए कोई अजीबुल खलकत चीज़ था। उसने बड़े खुश्क लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा, आपका शुभ नाम शायद अफजल बेग है। मैंने दीदा दानिस्ता बड़ी ठोस आवाज़ में जवाब दिया, जी हाँ, तबादले के कागजात में भी यही नाम दर्ज है। रविशंकर ने होंठ चबाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं कागजात देख चुका हूँ। फिर यकलख्त खामोश हो गया। मुझे उसकी ये खामोशी बड़ी पुरस्कार लगी। सोना घाट के बारे में जो कुछ मैंने सुन रखा था उसने मुझे पहले ही बहुत मोहतात कर दिया था। चुनाचे मैं शंकर को खामोश पाकर एक लम्हे तक उसके चेहरे पर नजरें गाड़े देखता रहा। फिर बोला, क्या मेरी आमद आपके लिए गैर मुतवक्को थी? हाँ, मैंने सुना था कि आप अपना तबादला मनसूख कराने के चक्कर में हैं। बिल्कुल गलत, मैं जल्दी से बोला। मेरे जहन में तबादले को मनसूख कराने का भी कभी कोई ख्याल नहीं आया। हो सकता है कि मेरी इतला गलत हो। रविशंकर ने कुर्सी पर पहलू बदला। महसूस कर रहा था मैं कि वो कोई बात मुझसे कहने के लिए बेचैन है। एक बार तो मेरे जी में आई कि खुलकर उसकी बेचैनी की वजह पूछ लूं,
لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا میز پر رکھی ہوئی فائل کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے سونا گھاٹ کی تقرری قبول کر کے غلطی کی ہے تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں سمجھا نہیں کہ اس بات سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ میں نے قدرے چپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سونا گھاٹ کے متعلق آپ کی معلومات غالباً زیادہ نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ منی خیز تھا۔ ہو سکتا ہے، میں بے پرواہی سے بولا، لیکن مجھے کسی علاقے سے کوئی سروکار نہیں، صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہی میری عادت ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، روی شنکر نے قدرے نفرت سے جواب دیا، پھر تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی بری لگی، لیکن میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ روی شنکر میری اچانک آمد سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ نہ میں جان سکا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سونا گھاٹ سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد روی شنکر سنجیدہ سی صورت بنائے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائلوں اور ضروری کاغذات کی فہرست بنانے لگا جو اب میرے چارج میں آنے والی تھی۔ میں بدستور خاموش بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ فہرست مرتب کرنے کے بعد اس نے مجھے وہ تمام کاغذات اور فائل دے دیے جو فہرست میں درج تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے تمام کاغذات کا جائزہ لیا، پھر اپنا شوق مکمل اطمینان کر لینے کے بعد چارج رپورٹ پر دستخط کیے اور اس کی ایک نقل دستور کے مطابق روی شنکر کے حوالے کر دی، جو اس نے بڑی جھلاٹ سے طے کر کے جیب میں ڈال لی تھی۔ دوسرے روز روی شنکر چلا گیا تو میں نے اپنا سامان 2 کمروں پر مشتمل اس کوارٹر نما مکان میں کرینی سے لگایا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ میرا آفس کوارٹر سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ مجموعی طور پر وہاں کل 4 کوارٹر تھے، 3 میں دوسرے ملازمین تھے اور چوتھا میرا تھا۔ رہائشی علاقہ جو تقریباً 1000 گز کے رقبے پر پھیلا تھا، اسے چاروں طرف سے خاردار تاروں سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ جنگلی جانوروں کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ ایک فارسٹ گارڈ ہر وقت داخلے کے پھاٹک پر تعینات رہتا تھا۔ میرے علاوہ دوسرے ملازمین کی تعداد 8 افراد پر مشتمل تھی، جس میں 4 فارسٹ آفیسر، گارڈ، 2 کلرک، 1 ڈرائیور اور 1 چپڑاسی تھے۔ یہ سارے کے سارے مقامی ہندو تھے۔ میں نے اپنا چارج سنبھالتے ہی عملے کے تمام افراد پر یہ بات واضح کر دی کہ میں کام کے سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کا عادی نہیں ہوں۔ جواب میں سبھی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا، لیکن میں نے جلد ہی یہ بات محسوس کر لی کہ عملے کے افراد بظاہر تو مجھے اپنے کام سے مطمئن کر رہے تھے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ میری بالادستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آیا تھا، چنانچہ میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ سونا گھاٹ میں آئے ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں نہ صرف یہ کہ میں نے جنگلات کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، بلکہ دوسرے علاقے کو بھی گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے سونا گھاٹ کے پجاری کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں کسی ایسے مقامی ہندو کی تلاش تھی جس پر میں مکمل اعتماد کر سکوں۔ دوسری شکل میں اس بات کا خدشہ لاحق تھا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں جس کے لیے میں نے ہیڈ کوارٹر سے روانگی کے وقت اٹل ارادہ کر رکھا تھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے ابھی اس پرانے مندر کا رخ بھی نہیں کیا تھا جس کے تہخانے میں سونا گھاٹ کا پجاری روایت کے مطابق اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ 1 ماہ اسی تگ و دو میں گزر گیا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ایک روز رات کے میں اپنے کوارٹر میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر برآمدے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے اپنا بھرا ہوا ریوالور جو تکیے کے نیچے رکھا تھا اٹھا کر اپنے گاؤن کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جا کر میں نے پوچھا تو باہر سے مجھے مادھو لال فارسٹ گارڈ کی آواز سنائی دی، جس نے دبی زبان میں مجھ سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ آخر مادھو لال کو اس وقت رات گئے بھلا میری ضرورت کس سلسلے میں پیش آ گئی۔ پھر میں نے بڑی بے پرواہی سے دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی مادھو لال جھپٹ کر اندر داخل ہوا اور دروازہ جلدی سے دوبارہ بند کر دیا۔ گاؤن میں بھرے ہوئے ریوالور کے دستے پر میری گرفت مضبوطی سے جمی ہوئی تھی اور میں مادھو لال کو گھورتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے جو تاثرات نظر آئے وہ کچھ ایسے تھے جس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا، وہ بری طرح بکھلایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے مادھو لال، تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں نے سختی سے پوچھا تو وہ کچھ اور بکھلا گیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تیز تیز چلتا ہوا سانس اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ میرے سوال پر وہ ایک لہجے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر مردہ سی آواز میں بولا، क्षमा کیجیے سرکار، میں نے اس سمے آپ کو تکلیف دی ہے۔
परंतु माधोलाल का लहजा भी उसकी बौखलाहट का सबूत पेश कर रहा था। मैंने उसे बड़े गौर से देखा, फिर कदरे नरमी से पूछा, तुम गालिबन मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ सरकार, लेकिन इससे कबल कि मैं आपसे कुछ कहूँ, इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि आप इसका जिक्र किसी और से ना करें। घबराओ नहीं माधोलाल, मैंने उसे तसल्ली देते हुए नरमी से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे काम आ सकूं। रहा इस बात का सवाल कि मैं तुम्हारी बात का तज़किरा किसी और से ना करूं, तो इस सिलसिले में तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। माधोलाल की नज़रों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। कुछ देर तक वो मुझे तशक्कराना नज़रों से खामोश खड़ा देखता रहा। फिर उसने जो बात मुझे बताई वो ना सिर्फ ये कि मेरे लिए हैरत अंगेज थी, बल्कि उसने मेरे तजस्सुस को और भी भड़का दिया था। माधोलाल के बयान के मुताबिक सोना घाट के पुजारी मोहनलाल की आत्मा वक्तन फवक्तन सोना घाट के किसी जवान हिंदू लड़की को तहखाने में एक रात गुजारने के लिए तलब किया करती थी। पुजारी की आत्मा की इस अनोखी ख्वाहिश का इल्म सिर्फ पुराने मंदिर के नए पुजारी को हुआ करता था, जो बाद में उस लड़की के वालिदैन से मिलकर मोहनलाल की आत्मा की फरमाइश बयान करता था। और लड़की के वालिदैन, जो मुर्दा पुजारी को सोना घाट के लिए रहमो आशती का देवता समझते थे, चुपचाप अपनी लड़की को नए पुजारी के हवाले कर दिया करते थे, जो उसे पुराने मंदिर में एक रात गुजारने के लिए छोड़ आता था। हर वो लड़की जो तहखाने में रात गुजारने के बाद बाहर आती थी, इंतहाई मुकद्दस समझी जाती थी और लोग उसे देवी समझते थे। माधोलाल ने मुझे ये भी बताया कि तहखाने में रात गुजारने वाली लड़की जब दूसरी सुबह बाहर निकलती थी तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी, लेकिन लोग उसके गूंगेपन को भी मोहनलाल की आत्मा का कोई करिश्मा समझकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते थे। मैं बड़ी तवज्जो से माधो की बात सुनता रहा। फिर जब उसने मुझे ये बताया कि आज शाम पुराने मंदिर के नए पुजारी ने उससे मुलाकात की थी और ये बताया था कि इस बार मोहनलाल की आत्मा ने उसकी नई नवेली दुल्हन को तहखाने में रात गुजारने के लिए पसंद किया था, तो मैं समझ गया कि इतनी रात गए माधोलाल मेरे पास क्यों आया है। दरअसल वो मुझसे ये चाहता था कि मैं किसी तरह उसकी बीवी को मोहनलाल की आत्मा की ख्वाहिश से महफूज रख सकूं। मैंने सिर्फ एक बार माधोलाल की बीवी एक झलक देखी थी और उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। चुनाचे जब माधोलाल ने रो रो कर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं किसी तरह उसकी बीवी को तहखाने में रात गुजारने से बचा लूं, तो मैं सोच में पड़ गया। सोना घाट के पुजारी के असरारों में एक नए बाब का इजाफा हुआ तो मेरा तजस्सुस दो चंद हो गया। मैं बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर करने लगा कि आखिर मुर्दा पुजारी की रूह नौजवान लड़कियों को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है। ये क्या राज है। मैं बड़ी देर तक खामोश बैठा इन्हीं ख्यालात में महव रहा। फिर माधोलाल को मुखातिब करके बोला, क्या तुम नए पुजारी का हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकते? कर तो सकता हूँ हुजूर सरकार, लेकिन मंदिर का पुजारी यही समझेगा कि मैं देवताओं को भेंट देने से मुंह मोड़ रहा हूँ। माधोलाल ने मरी हुई आवाज में कहा, पंडितों और पुजारियों का पूरा गिरोह मेरा दुश्मन बन जाएगा। आप ही कुछ कीजिए सरकार, वरना मैं बिला मौत मारा जाऊंगा। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सोना घाट के मकामी हिंदू एक मुसलमान की हैसियत से मेरी दखल अंदाजी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। मैंने माधोलाल को टिटोलने की खातिर पूछा। कुछ भी कीजिए सरकार, लेकिन मेरी स्त्री को बचा लीजिए, नहीं तो मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि खुद को गोली मार लूंगा। तुम नए पुजारी से कहाँ मिले थे? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मंदिर में मुठभेड़ हो गई थी, वो हिकारत से बोला। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे भेंट मांगेगा तो मैं कभी वहां पूजा के इरादे से ना जाता। पुजारी की आत्मा ने तुम्हारी औरत को कब तलब किया है? कल रात, माधोलाल ने गुस्से के आलम में अपना होंठ काटते हुए कहा। फिर फैसला कुन लहजे में बोला, अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया सरकार, तो अपने साथ साथ मैं मोहिनी को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन उसे किसी कीमत पर तहखाने में रात गुजारने के लिए नहीं भेजूंगा। हिमाकत की बातें मत करो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि मोहिनी को इस मुसीबत से निजात दिला सकूं। मैं आपकी इस कृपा को सारा जीवन याद रखूंगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ देर तक मैं माधोलाल को नसीहत करता रहा कि उसे किसी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उसे यह कहकर मुतमईन कर दिया कि वो आइंदा 2 रोज तक किसी काम से भी कैंप के बाहर न जाए और सिर्फ अपने क्वार्टर तक महदूद रहे। बाद में अगर नए पुजारी से मुलाकात हो तो वो कह सकता था कि उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैंने उसे ये भी यकीन दिलाया था कि सुबह होते ही मैं कैंप के फाटक पर तैनात गार्ड को बड़ी सख्ती से हिदायत कर दूंगा कि किसी बैरूनी आदमी को मेरी इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल न होने दिया जाए। माधोलाल मेरी इस तजवीज़ पर बहुत खुश हुआ। मैंने इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर मैं उसकी बीवी को बचाने में कामयाब हो गया तो वो किसी पालतू कुत्ते की तरह हमेशा मेरा वफादार और एहसानमंद रहेगा। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, माधोलाल तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुजारी की आत्मा खूबसूरत लड़कियों और जवान औरतों को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है?
भगवान ही जाने सरकार, मेरी समझ में तो खाक नहीं आता। क्या ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें पुजारी की आत्मा तलब कर चुकी है? मैंने पूछा। इस सिलसिले में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, वैसे लोगों का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है, इसी वजह से तो इनकार की हिम्मत कोई नहीं करता। बड़े मंदिर के नए पुजारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इस बार दबी जुबान में पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नए पुजारी की शरारत हो और वो मोहनलाल की आत्मा को बदनाम कर रहा हो? इन पंडितों और पुजारियों से सुनकर सब कुछ मुमकिन है, माधोलाल ने इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज में कहा, फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सरकार, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन बातों का पता किसी और को न होने पाए, वरना बरादरी के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। माधोलाल चला गया तो मैं बड़ी देर तक जागता रहा और सोना घाट के पुजारी के बारे में सोचता रहा। पुजारी के बारे में मुझे अब तक जो कुछ भी मालूमात हासिल हुई थी वो न सिर्फ ये कि हैरत अंगेज थी बल्कि नाकाबिले यकीन भी थी। मैंने माधोलाल को 2 रोज तक अपने क्वार्टर में महदूद रहने का मशवरा ये सोच कर दिया था कि वो पुजारियों के शर से महफूज रह सके। दूसरी बात ये थी कि इस तरह मैं सोना घाट के पुजारी की इस पुरस्कार शक्ति को भी आजमाना चाहता था जिसने ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक मोहनलाल ने एक ऐसे हट्टे कट्टे साधु को जलाकर राख कर दिया था जिसने मोहनलाल की शक्ति को गलत साबित करने का दावा किया था। तमाम रात मैं इसी ख्याल में उलझा रहा, फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं बेखबर सो गया। दूसरी सुबह नींद से बेदार होते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि माधोलाल समेत अमले के तमाम अफराद को बुलाकर बड़ी सख्ती से यह हिदायत कर दी कि 2 रोज तक ना तो कोई शख्स मेरी इजाज़त से कैंप के बाहर कदम निकालेगा और ना ही किसी और कैंप में दाखिल होने की इजाज़त होगी। अमले के तमाम अफराद चूंकि मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, इसलिए किसी ने भी उसकी वजह जानने की जरूरत न की और खामोशी से मेरा हुक्म सुनकर उल्टे कदमों अपनी अपनी ड्यूटियों पर वापस चले गए। दिन भर मैं ऑफिस में बैठा फाइलों को उलटता पलटता रहा। 4 बजे के करीब उठकर मैं क्वार्टर जाने का इरादा कर ही रहा था कि मेरा चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। पहली नज़र में ही उसका चेहरा देखकर मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो दूर से भागता हुआ आया है। मेरी मेज़ के सामने आकर उसने पहले हाथ जोड़कर अपने रवायती लहजे में नमस्कार किया, फिर बोला, साहब, बड़े मंदिर का पुजारी आपसे मिलना चाहता है। बड़े मंदिर का पुजारी? मैं इस इतला पर चौंक पड़ा। जिस आदमी से मिलने के लिए मैं 1 माह से हजारों मंसूबे बना चुका था, वो इस वक्त आज खुद मुझसे मिलने आया था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि आखिर पुजारी मुझसे किस गर्ज से मिलना चाहता है। फिर बड़ी बेपरवाही से चपड़ासी से पूछा, तुम किस पुजारी का तज़किरा कर रहे हो? सोना घाट में एक ही तो मंदिर है साहब, उसी का पुजारी बाहर फाटक पर खड़ा आपकी इजाज़त का मुंतज़िर है। अकेला है या कुछ और लोग भी हैं साथ उसके? पुजारी तन्हा ही आया है साहब। बुला लाओ उसे, मैंने सपाट लहजे में कहा। फिर मेज़ पर बिखरी हुई फाइलों को समेटने लगा। चपड़ासी के जाने के कोई 10 मिनट बाद एक हट्टा कट्टा और तवीलुल कामत पुजारी अपने खड़ाओं से खटपट की आवाज़ें निकालता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका सर अंडे के छिलके की तरह घुटा हुआ था, जिस पर उसकी लंबी चुटिया बड़ी मज़े खेज लग रही थी। नंगे सीने और बाजुओं के अलावा पुजारी ने अपनी कुशादा पेशानी और चेहरे पर भी संदल के बुरादे की किस्म की कोई चीज़ मल रखी थी। उसके कवी खासे मजबूत और घुटे घुटे नजर आ रहे थे, रंग तांबे जैसे थी। आंखों में उसने बड़े बदसलीके से काजल लगा रखा था, जिससे उसकी हैयत अजीब पुरस्कार बनकर रह गई थी। उसने सीधे हाथ में एक लंबी माला दबा रखी थी, जिसका जाप उस वक्त भी जारी था। लंबी लंबी उंगलियां बड़ी तेजी से माला के दाने बदल रही थी, लेकिन होंठ बिल्कुल साकित थे। उसके जिस्म पर सिवाय के धोती के कोई और कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरी मेज के सामने रुककर वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे मेरा कोई बड़ा ऑफिसर अचानक राउंड पर आ गया हो और मेरी किसी फाश गलती को पकड़ लेने के बाद नाक निगाहों से घूर रहा हो। मुझे पुजारी का ये अंदाज एक आंख ना भाया। चुनाचे मैंने फिर भी अपने चेहरे पर संजीदगी और बेजारी के मिले जुले तासुरात बखेरते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वो मेरे इशारे को नजरअंदाज करके बदस्तूर कहर आलूद निगाहों से मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा। मेरे चपड़ासी ने बताया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मैंने रूखे लहजे में बोला, क्या तुम्हें कोई खास काम है? मूर्ख, क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं कि फकीरों और पुजारियों से किस अंदाज में पेश आना चाहिए? पुजारी ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो मेरा खून खौल उठा। मैंने बड़े ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, महाराज, खुदा की नज़र में सब बंदे बराबर हैं। छोटे बड़े की तमीज़ तो दुनियादारी की बातें हैं। जवाब में पुजारी मुझे खा जाने वाली खूनखार नज़रों से घूरता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसी दौरान मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना उस नामाकूल को धक्के मारकर कैंप से बाहर निकलवा दूं, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि सोना घाट तक पहुंचने में नया पुजारी
ایک اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے تک گہرا سکوت طاری رہا۔ پجاری کی آواز گونجی، نادان بالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سمے تیرے من میں کیا ہے۔ اگر میری مان تو اس خیال کو دل سے نکال دے۔ دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے ٹکرانا تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ کیا تم صرف یہی کہنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اس بار میں اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا اور کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دھیرج سے کام لے مورکھ، پجاری نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں تجھ کو صرف اتنا بتانے کو آیا ہوں کہ تو نے پجاری کی آتما کی خواہش کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس سے باز آ جا، نہیں تو دیوتاؤں کی شکتی تجھے کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ میں پجاری کی بات سنتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ گیا۔ فوری طور پر میں نے یہی رائے قائم کی کہ میرے کسی آدمی نے غالباً پجاری کو کسی وجہ سے میرے صبح والے حکم سے آگاہ کر دیا ہے، اور اب وہ مجھے دھونس دے کر مادھو لال کی نوبہتا موہنی کو حاصل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی مارے غصے کے میری مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میں نے حکارت بھری نظروں سے پجاری کو گھورتے ہوئے کہا، پجاری مہاراج، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اس وقت یہاں کس لیے آئے ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم لوگ اس بار اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور اب اگر تم خیریت چاہتے ہو تو سیدھی طرح کیمپ سے باہر چلے جاؤ، ورنہ مجبوراً مجھے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مورکھ، نادان چھوکرے، پجاری کانپتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، تیری یہ مجال کہ اب تو دیوتاؤں کی شکتی کو بھی للکار رہا ہے۔ اپرادھی، میں یہاں تجھ سے کوئی دان یا بخشاش لینے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج رات تو اپنی آنکھوں سے پجاری کی آتما کی شکتی کا تماشا دیکھ لے گا۔ تیرے فرشتے بھی موہنی کو آتما کی مرضی سے دور نہیں رکھ سکیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اس ہٹے کٹے پجاری کو کوئی سخت بات کہتا، وہ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا منہ ہی منہ میں بدبداتا آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی لپکتا ہوا باہر برآمدے میں آ گیا، اور اس وقت تک نفرت بھری نگاہوں سے نئے پجاری کو گھورتا رہا جب تک وہ بڑے پھاٹک سے باہر نہیں چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ پجاری کی آمد میرے ہی کسی آدمی کی شرارت تھی۔ ایک بار یہ بات دل میں آئی کہ عملے کے تمام لوگوں کو بلا کر معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ کس کی مخبری پر نئے پجاری نے میرے پاس آنے کی جرت کی تھی، لیکن یہ سوچ کر اپنا غصہ پی گیا کہ ہو سکتا ہے میری باز پرس پر مادھو لال اور موہنی کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ تاہم میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات میں بھی دیکھوں گا کہ موہن لال کی روح کس طرح مادھو لال کی نوجوان بیوی کو اپنی مرضی پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ پجاری کے جانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا، کپڑے تبدیل کر کے شام کی چائے پی، پھر اس خیال سے سونے کے لیے لیٹ گیا کہ ابھی سے نیند پوری کر لوں، اس لیے کہ رات کو نہ جانے کیا واقعہ پیش آئے اور مجھے کتنی دیر تک جاگنا پڑے۔ 3 گھنٹے تک لمبی تان کر سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور 2 کپ گرما گرم کافی پی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور کوارٹر سے باہر آیا۔ کسی فوری حادثے سے مقابلے کے لیے میں نے اپنا ریوالور بھر کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ رات کو اکثر میں کیمپ کا راؤنڈ لیا کرتا تھا، چنانچہ آج جب رات کی ڈیوٹی والے عملے نے مجھے گشت کرتے ہوئے دیکھا تو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ سب سے پہلے میں ٹہلتا ہوا بڑے پھاٹک کی طرف گیا جہاں ایک مسلح فارسٹ گارڈ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر اس نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا، پھر دوبارہ گشت کرنے لگا۔ پھاٹک کے پاس جا کر میں نے اس کے وزنی تالے کو چیک کیا، پھر ڈیوٹی گارڈ سے 1-2 باتیں کرنے کے بعد ملازمین کے کوارٹر کی سمت چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ اپنے خیالات میں محو جب میں ٹہلتا ہوا مادھو لال کے کوارٹر کے قریب پہنچا تو اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر رک گیا۔ عام طور پر دن کی ڈیوٹی کرنے والے ملازمین شام ہی سے اپنے کوارٹر کے دروازے بند کر کے پڑے رہتے تھے۔ مادھو لال کا دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے اس کی حماقت پر سخت تاؤ آیا، اس لیے کہ آج رات اسے زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کچھ دیر میں خاموش کھڑا اندر کی سن گن لیتا رہا، پھر نہ جانے کیوں میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی اس کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے مادھو لال کو 2-4 آوازیں دی، دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کچھ وقفے کے بعد دوبارہ اسے آواز دی اور دروازے پر دستک بھی دی، مگر اس بار بھی دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو مادھو لال اور موہنی بے خبر سو رہے تھے، یا پھر انہیں کوئی یقیناً حادثہ پیش آ چکا تھا۔ اگر یہ کسی مسلمان کا گھر ہوتا تو میں شاید اتنی دیر باہر انتظار نہ کرتا، لیکن کسی ہندو کے مکان میں اتنی رات گئے بلا اجازت داخل ہوتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ خدا جانے مکین کس حالت میں ہوں۔ ویسے بھی سونا گھاٹ خالص ہندوؤں کا گڑھ تھا، مسلمان تو بس خال خال ہی نظر آتے تھے۔ اسی ادھیڑ بن میں 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں نے احتیاطاً ایک بار دروازے کو پیٹا،
फिर जवाब ना पाकर दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। क्वार्टर में उस वक्त गुप अंधेरा फैला हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मेरा शुबह अब यकीन में बदल चुका था। माधो लाल की यकीनन कोई हादसा पेश आ चुका था, वरना वो क्वार्टर का दरवाजा खुला छोड़कर अंदर अंधेरा कभी न करता। धड़कते हुए दिल से दबे दबे कदमों चलता मैं क्वार्टर के बरामदे में आ गया। कमरों में भी किसी किस्म की कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने रिवॉल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अल्लाह का नाम लेकर बत्ती रोशन कर दी। दूसरे ही लम्हे मैं यूं उछल पड़ा जैसे मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। जो मेरी नजरों ने देखा वो कुछ ऐसा ही मंजर था कि अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो वो भी चौंके बगैर न रहता। बत्ती रोशन होते ही मेरी नजर माधो लाल पर पड़ी, जो सामने नंगे फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर उबली नजर आ रही थी। दोनों हाथ यूं अकड़े हुए थे जैसे उन्हें जुम्बिश की हसरत ही रह गई हो। लेकिन वो चीज जिसने मुझ जैसे निडर और बेखौफ आदमी को भी दहशत ज़दा कर दिया था, माधो लाल का पेट था, जो किसी तरबूज की तरह दरमियान से चिरा हुआ था और अंदर की अंतड़ियां बाहर निकल पड़ी थीं। फर्श पर दूर दूर तक खून के छींटे नजर आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मैं गुंग सा खड़ा इस रूह फरसा मंजर को देखता रहा। फिर उसी दौरान मुझे उसकी नौजवान बीवी का ख्याल आया। न जाने उस पर क्या बीती होगी। चुनाचे मैं रिवॉल्वर निकालकर मुल्हे का कमरे की तरफ लपका। उसके बाद मैंने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मोहिनी का कोई सुराग ना मिला। मैंने माधो लाल के कमरे को भी अच्छी तरह देख डाला, लेकिन मुझे कोई ऐसा खंजर या हथियार नहीं मिल सका जिससे कत्ल के इम्कानी पहलुओं पर रोशनी पड़ सकती। मेरे जहन में अचानक नए पुजारी के जुमले गूंज उठे, जो उसने आज शाम ही रवानगी के वक्त मुझसे कहे थे। लेकिन अब भी जो कुछ मुझे नजर आया था, मैं उसे सोना घाट के पुजारी की रूह का करिश्मा समझने के लिए तैयार न था। मैं उस वक्त भी माधो लाल की मौत में किसी आदमी का हाथ महसूस कर रहा था। मैंने क्वार्टर से बाहर आकर अमले के सोए हुए मुलाजमीन को जगाया, फिर कैंप का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मोहिनी का कोई सुराग न मिला। माधो लाल की पुरस्रार मौत और मेरी डांट फटकार ने सारे मातहतों के औसान खता कर रखे थे। करीब करीब सभी भगवान और गंगा जल की कस्में खाकर मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पेश आने वाले वाकयात के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना ही उन्होंने किसी किस्म की चीखों पुकार की आवाज़ सुनी है। कैंप के बड़े फाटक पर तैनात ड्यूटी गार्ड की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उसने पहले तो मुझे बड़ी बड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाया कि माधो लाल की मौत में उसका कोई हाथ नहीं। फिर अचानक उसने रोते हुए मेरे पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, साहब, मैं अपनी माता के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने किसी को ना अंदर आते देखा ना बाहर जाते। फिर मोहिनी को क्या ज़मीन निकल गई? मैंने सारे ही आदमियों को घूरते हुए गरजदार आवाज़ में कहा, माधो लाल को क्या फरिश्तों ने मौत के घाट उतारा है? सरकार, चौकीदार ने दबी जुबान में कहा, मुझे पहले ही डर था कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। क्या मतलब? आपने बड़े मंदिर के पुजारी को नाराज करके अच्छा नहीं किया। सोना घाट के पुजारी की आत्मा जो मर्जी आए। बंद करो ये बकवास, मैंने इतनी जोर से चीख कर कहा कि चौकीदार के अलावा दूसरे भी सहम गए। लेकिन मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देख रहा था। ये सोचकर मेरे चीखने चिल्लाने से कहीं उनके मजहबी जज्बात मजरू ना हो और वो मुश्तिल ना हो जाए। मैंने उन सबको चले जाने को कहा। फिर एक फॉरेस्ट गार्ड को पुलिस को मुतला करने के लिए रवाना कर दिया और खुद दफ्तर आकर पेश आने वाले वाकयात पर गौर करने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार हैरत अंगेज़ वाकयात देखे और सुने हैं, लेकिन माधो लाल की मौत उन सब से ज़्यादा ताज्जुब खेज़ और पुरस्रार थी। एक मुसलमान की हैसियत से मैं रूहों के वजूद का कायल ज़रूर हूँ, लेकिन ये रूहें इस तरह किसी दुश्मन का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियाँ भी बाहर खींच सकती हैं, मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात जो मेरे जहन को उलझा रही थी वो ये थी कि आखिर सोना घाट के पुजारी की रूह खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को ही तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों पसंद करती थी। थाना चूंकि कैंप से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए ड्यूटी इंचार्ज 2 पुलिस वालों के साथ जल्दी आ गया। सबसे पहले उसने मेरी मौजूदगी में मौका वारदात को देखा, फिर कैंप का राउंड लेकर मेरे दफ्तर में आया और अमले के तमाम आदमियों का बयान कलम बंद करने लगा। बड़े फाटक के ड्यूटी गार्ड की हालत उस वक्त भी पतली नजर आ रही थी। चौकीदार ने अपने बयान में जहां अपनी बेगुनाही और लाइल्मी साबित करने की कोशिश की थी, वहां नए पुजारी की आमद और उससे मेरी गुफ्तगू के बारे में भी बता दिया था। गालिबन वो इस वक्त कहीं करीब ही मौजूद रहा होगा जब मैं नए पुजारी से बातें कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज़ा मुझे पहली बार हुआ था कि वो कमबख्त छुपकर हमारी गुफ्तगू सुनता रहा है। पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में यह अंदाज़ा कर लिया था कि बाद में किसी वक्त उससे इस सिलसिले में बाज पुरस ज़रूर करूँगा। पुलिस ऑफिसर जो अब तक बड़ी तुंदही से कार्रवाई कर रहा था, चौकीदार का बयान सुनकर चौंक उठा।
پھر جب وہ عملے کے تمام افراد کا بیان فردن فردن لے چکا اور دفتر میں صرف ہم دونوں رہ گئے تو اس نے مجھ سے کہا، مادھو لال کے قتل کی واردات اب بالکل صاف ہو گئی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ نے قاتل کو شناخت کر لیا ہے؟ ممکن ہے کہ میری رائے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر سونا گھاٹ کے پجاری نے مادھو لال کی بیوی کو تہہ خانے میں رات گزارنے کے لیے منتخب کر لیا تھا تو پھر آپ کی اور مقتول کی ساری رکاوٹیں بیکار تھیں۔ گویا آپ کو خیال ہے کہ یہ سب کچھ ایک روح کی کرشمہ سازی ہے۔ میں نے پولیس آفیسر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نہ مانیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ موہن لال جی مہاراج کی آتما جو چاہے اور جب چاہے کر گزرتی ہے۔ پولیس آفیسر جو کہ ایک مقامی ہندو تھا بڑی عقیدت سے بولا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کاغذات سمیٹنے کے بعد دبی زبان میں کہا، آپ چونکہ ایک ذمہ دار مسلمان آفیسر ہیں، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ مادھو لال کی پراسرار موت یا موہنی کی گمشدگی کے سلسلے میں اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اب قاتل کی تلاش کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ میں نے متحیرانہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، دیوتاؤں کی شکتی سے ٹکرانا ہمارے بس کا روگ نہیں، مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ دیوتاؤں کی آتما کسی بے قصور کی جان بھی لے سکتی ہے۔ میں نے کہا، دھرم کے معاملے میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس آفیسر نے ناگوار سے لہجے میں کہا، میں نے آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دیا ہے، آگے آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میں جلدی سے بولا، ایک منٹ آفیسر، فرض کر لو کہ میں اس سلسلے میں خاموش نہ رہ سکوں تو کیا ہوگا؟ اس کا تماشا خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس نے روکھے انداز میں جواب دیا، پھر ایڑیوں کے بل تیزی سے گھومتا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ پولیس آفیسر کی باتوں نے مجھے اور الجھا دیا تھا۔ جہاں تک دوسرے آدمیوں کا تعلق تھا، میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ محض جہالت اور کچے عقیدے کی وجہ سے ایک مرے ہوئے شخص کو اپنی مہاتما اور دیوتا سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن پولیس آفیسر نے بھی جب انہی باتوں کو دہرایا جو میں پہلے سن چکا تھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھا سونا گھاٹ کے پجاری کے بارے میں سوچتا رہا، جس کی شخصیت اب میرے لیے بہت زیادہ پراسرار بن چکی تھی، تاہم میں کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اسی دوران مجھے ٹھاکر مہاراج کی پیش گوئی یاد آ گئی، جنہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ سونا گھاٹ میں مجھے آئے دن نت نئے نئے اور حیرت انگیز واقعات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آخر میں فتح میری ہوگی اور پھر میں جو چاہوں گا وہ پورا ہوگا۔ ہر چند کہ مجھے ٹھاکر مہاراج کی یہ باتیں ہیڈ کوارٹر سے روانگی کے وقت مزہ خیز لگی تھی، لیکن آج میں جس واقعے سے دوچار ہوا تھا وہ نہ صرف یہ کہ حیرت انگیز تھا بلکہ اس نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ مادھو لال کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا سونا گھاٹ کے پجاری کے اصرار کو حل کر کے ہی دم لوں گا۔ آفس کی دیوار کی گھڑی نے رات کے 12 بجے کا اعلان کیا تو میں چونک اٹھا اور دفتر بند کر کے باہر آ گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ چوکیدار کو اسی وقت آڑے ہاتھوں لے ڈالوں، لیکن یہ پھر سوچ کر کہ مفت میں بات بڑھے گی اپنے کوارٹر کی طرف چلا آیا۔ بیرونی دروازے کا تالا جسے میں نے جاتے وقت اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا کھول کر جب میں اپنے کوارٹر میں داخل ہوا تو نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں موہنی میرے کوارٹر میں موجود نہ ہو۔ اپنے خیال پر مجھے فوراً ہی ہنسی آ گئی، اس لیے کہ جب تالا مجھے بند ملا تھا تو پھر وہاں موہنی کی موجودگی کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے بیرونی دروازے کی چٹخنی لگائی، پھر ایک طویل جماہی لے کر اعصاب پر چھائی ہوئی کسل مندی کو دور کیا اور قدم اٹھاتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے خوابگاہ میں داخل ہو کر بتی کا سوئچ آن کیا، میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو کر رہ گیا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کر لینے کو دل آمادہ نہ ہو سکا۔ مادھو لال کی نوجوان بیوی، جسے کچھ دیر پہلے سارے کیمپ میں چھان مارا گیا تھا، میری خوابگاہ میں میرے بستر پر پڑی ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی، اور میں دروازے پر دم بخود کھڑا اسے پھٹی پھٹی نظروں سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرے لیے دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ تقریباً 10 منٹ تک میں پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا موہنی کو دیکھتا رہا۔ پھر سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ اب کیا ہوگا؟ مادھو لال کا قتل اور پھر اس کی بیوی کا میرے خوابگاہ میں پایا جانا قانون کی نظروں میں مجھے قاتل ثابت کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ یہ سوچ کر میری نظروں کے سامنے اندھیرا سا پھیلنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اس اچانک پیش آنے والی صورتحال سے کیوں کر گلو خلاصی ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر اچانک ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ پہلے موہنی کو جگا کر اس سے پوچھوں کہ وہ میری خوابگاہ کس طرح پہنچی، بعد میں اگر اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو حالات کے پیش نظر اسے موت کے گھاٹ اتار کر اپنے کوارٹر سے دور لے جا کر کہیں چھپاؤں گا
और सुबह को जब उसकी लाश मिलेगी तो ज़ाहिरी तौर पर मैं इस वाक़े को भी सोना घाट के पुजारी की रूह से मंसूब करके अपनी जान साफ बचा लूँगा। इस ख्याल से मेरे दिल को कदरे ढारस मिली तो पहले मैंने जल्दी से ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर दिल कड़ा कर आगे बढ़ा और मोहिनी का बाजू थाम कर उसे झंझोड़ने लगा। कुछ देर तक वो कसमसाई, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी और मुझे हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगी। मोहिनी, मैंने फौरन ही सख्त मगर दबी हुई आवाज़ में उसे मुखातिब किया, सच सच बताओ कि तुम यहाँ किस तरह आ गई? मोहिनी ने कोई जवाब न दिया, बस टिकटिकी बांधे मुझे घूरती ही रही। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक जाग उठी और अब अपनी यादाश्त को यकजा करने की कोशिश कर रही है। कबल इसके कि वो कुछ कहती, मैं दोबारा टपट कर बोला, ये बात अच्छी तरह सोच लो कि अगर तुमने त्रिया चिलितर दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मोहिनी बदस्तूर मेरे चेहरे को घूरती रही। चंद लम्हे तक कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। फिर उसके होंठ आहिस्ता से हिले। क्या मेरा पति मर चुका है? उसने सपाट आवाज में मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम मेरी ख्वाबगाह में कैसे आ गई थी? मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में पूछा। मुझे यहाँ पुजारी की आत्मा लाई थी, मोहिनी ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरे पति ने पुजारी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए महाराज की आत्मा के गुस्से का शिकार हो गया। क्या तुमने अपनी आंखों से माधोलाल को कत्ल होते देखा था? कत्ल? वो मुतहयराना अंदाज में अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। नहीं, पुजारी महाराज ने मेरे पति के शरीर को हाथ तक नहीं लगाया था, बस दूर से अपनी उंगली उठाकर मेरी पति की तरफ इशारा किया था। मोहिनी का यह बयान भी मेरे लिए कुछ कम हैरत अंगेज नहीं था। मैं फिर भी सोच में पड़ गया। अपने वाले से मैंने काली ताकतों और सफली इल्म के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अपनी आंखों से आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं देखा था। मैं मोहिनी को घूरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में या तो गुफ्तगू करने के अंदाज में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जो मैं ये सोच सकता कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। मेरे दोबारा पूछने पर कि वो मेरे कमरे में कैसे आई, उसने यही बताया था कि पुजारी महाराज की शक्ति ने जिस तरह उंगली के एक इशारे से माधोलाल को कत्ल कर दिया था, इस तरह मेरी ख्वाबगाह के बंद ताले को भी खोल लिया था। उसके बाद के वाकयात जो उसने बताए वो इंतहाई शर्मनाक थे, जिनका तज़किरा मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन ये सुनकर मेरा खून ही खौल उठा था कि सोना घाट के पुजारी ने अपनी नापाक ख्वाहिशों की खातिर मेरी ख्वाबगाह का इंतखाब किया था। दूसरा सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था वो मोहिनी का गुफ्तगू करना था, इसलिए कि आन जहानी माधोलाल ने मुझे ये बताया था कि जिस लड़की को पुजारी की रूह रात गुजारने के लिए पसंद करती थी वो बाद में गूंगी हो जाया करती थी। क्या तुम्हें अपने पति की मौत का कोई रंज नहीं है? मैंने कुछ सोचकर पूछा तो वो नजरें झुकाकर बोली, भगवान, उनकी मर्जी के आगे मनुष्य जात भला क्या कर सकती है? पुलिस के रूबरू तुम्हारा क्या बयान होगा? मैंने उलझते हुए पूछा। पुजारी महाराज ने चूंकि मुझे अपने चरणों में जगह दी है, इसलिए झूठ कहा मेरे लिए घोर पाप है। मैं पुलिस को वही बयान दूंगी जो मैंने आपको दिया है। मुझे मोहिनी के इस जवाब पर जिस कदर हैरत हुई उसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता था कि मोहिनी माधोलाल से किस कदर प्यार करती थी। महज 3-4 घंटे के अंदर अंदर उसका यूं बदल जाना मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज बात थी। ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मोहिनी के साथ मेरा बर्ताव क्या होना चाहिए। इस खामोशी से जाने की इजाज़त देने की सूरत में मुमकिन था कि अपने आदमियों में जाकर अपने साबका बयान से मुनहरिफ हो जाती और मेरे खिलाफ कोई ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगा देती कि मेरा बचना मुहाल हो जाता। कुछ देर तक मैं यही सोचता रहा, फिर मैंने उसे मुखातिब करके पूछा, क्या तुम्हारे पुजारी देवता ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। तुम अगर दोबारा चाहो तो पुजारी की आत्मा से मुलाकात कर सकती हो। उसने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं। जब महाराज का मन चाहेगा खुद ही मुझे दर्शन दे जाएंगे। अगर मैं सोना घाट के पुजारी से मिलना चाहूँ तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसके लिए तुम्हें मंदिर के नए पुजारी से इजाज़त लेनी होगी। मैं एक बार फिर सोच में पड़ गया कि मोहिनी के साथ मेरा सलूक क्या होना चाहिए। क्या मैं उसे अपने बचाव के लिए ख़त्म कर दूं या मुसीबत मोल लेने के लिए जाने की इजाज़त दे दूं? बड़ी देर तक मैं कोई आखिरी फैसला न कर सका। फिर अचानक मेरे दिल ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और बिला वजह किसी कमज़ोर के खून से हाथ रंगना एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। इस ख्याल के आते ही मैंने दिल में खुदा का नाम लेकर मोहिनी को खामोशी से चलने की इजाज़त दे दी, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया कि अगर उसने कोई शरारत की तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस दिलचस्प कहानी के अगले हिस्से पर। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
اور نیچے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ کی شکل میں ضرور کیجیے. شکریہ.